ایک ایسی دعوت جسے صدیوں تک ٹھکرایا گیا، ایک ایسا گناہ جس نے آسمان کو رونے پر مجبور کر دیا۔ دنیا اندھیرے میں تھی، مگر ایک شخص کے چہرے پر حق کا نور چمک رہا تھا۔ پھر وہ نشانی ظاہر ہوئی جس نے دلوں کو دہشت سے بھر دیا۔ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک ایسی کشتی جو ان کے لیے مذاق تھی، مگر اللہ کے لیے انصاف کا ترازو۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، سواری ہو جاؤ، مگر بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ہوں۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین نے اپنا سارا پانی اگل دیا۔ ایک پوری تہذیب ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ یہ بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس خوفناک طوفان کی۔ بات ہے اس صدی کی جب انسان کی عمر صدیوں پر محیط تھی، ایک ایسی دنیا جہاں موت ایک بھولا ہوا خواب تھی۔ لوگ خوش تھے، جسم تندرست تھے اور فصلیں سونا اگلتی تھیں، مگر اسی خوشحالی میں غفلت کا زہر گھلنے لگا۔ جب ان کے 5 نیک بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری قوم غم میں ڈوب گئی۔ شیطان نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ شیطان نے کہا، ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ یہ شرک کی پہلی دہلیز تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ یادگار خدا بن گئی۔ اب لوگ اللہ کے بجائے پتھروں کے آگے جھکنے لگے تھے۔ تب اس اندھیرے کو ہٹانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، ایک ایسا انسان جس کے چہرے پر حق کا نور تھا۔ نوح نے پکارا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانے گئی؟ ہمارے پاس زیادہ مال اور اولاد ہے، اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ وہ راتوں کو چھپ کر لوگوں کے گھروں میں جاتے اور حق کی بات بتاتے۔ صدیاں بیت گئیں مگر ان کے دلوں کا پتھر نہیں پگھلا۔ جب بھی نوح علیہ السلام بولتے وہ اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے۔ میری دولت میری شان ہے، تمہاری دعوت غریبوں کے لیے ہے۔ یاد رکھنا میرے اولاد، یہ نوح ہماری پرمپرا کا دشمن ہے۔ 950 سال ایک انسان کا اکیلے لڑنا۔ ہر نیا باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ نوح کی بات کبھی مت سننا۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے تڑپ کر پکارا، اے میرے رب، میں ہار گیا ہوں، اب تو ہی فیصلہ کر۔ اللہ کا حکم آیا، اے نوح، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ حکم ملتے ہی کام شروع ہوا۔ صحابہ اور ایمان والے لوگ بڑے درختوں کو کاٹنے ریگستان کی طرف نکل پڑے۔ ریگستان کی گرم ریت پر ایک ایسی چیز بننی شروع ہوئی جس نے دیکھنے والوں کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ شہر کے لوگ گزرتے اور مذاق اڑاتے۔ پاگل پن کی بھی حد ہوتی ہے، اے نوح، پانی کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام نے سکون سے کہا، آج تم ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا قہر تمہیں گھیر لے گا۔ کشتی مکمل ہو رہی تھی اور آسمان کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ رحمت اب قہر میں بدلنے کو تیار تھی۔ اچانک فطرت بدل گئی۔ جانور جوڑا در جوڑا خود بخود کشتی کی طرف کھچے چلے آئے۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار پکارا، لوگو، اب بھی وقت ہے، اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ اعلان تھا کہ اب صبر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اے نوح، ہمیں اپنے ان مضبوط پہاڑوں پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں آپ کے خدا سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کا حکم ہوا اور کشتی کا بھاری دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب باہر رہنے والوں کا مقدر موت تھی۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسی بارش جو پانی نہیں بلکہ موت بن کر گر رہی تھی۔ زمین نے بھی اپنا سارا پانی اگل دیا۔ ہر طرف سے موت کا سیلاب تیزی سے بڑھنے لگا۔ پانی اتنا بڑھا کہ وہ عظیم کشتی جو ریگستان میں کھڑی تھی اب موجوں پر تیرنے لگی۔
नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आखिरी बार पुकारा, बेटा अब भी अपने गुरूर में एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। अगले ही पल एक अजीम मौज आई और बाप बेटे के दरमियान हमेशा के लिए दीवार बन गई। शहर के शहर मिट्टी के ढेर बन गए। वो मजबूत दीवारें जिन पर उन्हें नाज था वो कागज की तरह बह गईं। शहर के शहर मिट्टी के ढेर बन गए। वो मजबूत दीवारें जिन पर उन्हें नाज था वो कागज की तरह बह गईं। वो विशाल कश्ती अब पहाड़ों जैसी मौजों के बीच एक तिनके की तरह तैर रही थी। हर तरफ सिर्फ मौत का रक्स था। कश्ती के अंदर खामोशी थी। जानवर और इंसान सब इस बात से वाकिफ थे कि बाहर एक पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अरे मेरे रब, तू कितना रहीम है, मगर तेरा कहर उससे भी कितना सख्त है। मेरे भाई, आज सिर्फ वही जिंदा हैं जिन पर अल्लाह का साया है। पानी इतना बढ़ा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी डूब गया। अब जमीन पर सांस लेने वाली कोई चीज बाकी नहीं बची। ये हमारे खुदा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? 40 दिन और 40 रातें आसमान ने रोना बंद नहीं किया। कश्ती एक ऐसी दुनिया में तैरती रही जो अब एक कब्रिस्तान थी। आय अल्लाह, हमें नई जिंदगी की रोशनी दिखा दे। आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। तूफान की शिद्दत धीमी होने लगी। पानी नीचे उतरा तो दूर एक पहाड़ की चोटी नजर आई। ये जोदी पहाड़ था जहां इस अजीम कश्ती की मंजिल तय थी। देखो, अल्लाह ने हमें ही जमीन दिखा दी। अल्लाह का वादा सच्चा था। एक भारी आवाज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जूडी पहाड़ की चट्टान पर रुक गया। सफर खत्म हो चुका था। शुक्र है उस रब का जिसने हमें जालिमों से नाजात दी और हमें सलामत रखा। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाजा खोला। बाहर की ताजा हवा सदियों बाद उनके जिस्मों से टकराई। एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। अल्लाह के नाम से जो शुरू करने वाला है, चलो मेरी कौम। जानवर जोड़ा दर जोड़ा कश्ती से बाहर निकलने लगे। वो वीराना जो मौत का मंजर था अब दोबारा जिंदगी से भरने वाला था। क्या हम अब यहाँ नया शहर बसाएंगे? अल्लाह हम सब का मददगार रहे। जमीन पर कदम रखते ही नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो एक ऐसी इबादत थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ऐ हमारे रब, आपने हमारी जान बचा ली। अब हमें हमेशा अपना शुक्रगुजार रखना। पहाड़ की ढलान पर मिट्टी और पत्थरों से पहली बस्ती की बुनियाद रखी गई। ये इंसानियत की दूसरी शुरुआत थी। ये देवरे हमारी नई जिंदगी की पहचान होंगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। आसमान पर एक अजीम शान कौसे कुज़ा जाहिर हुई। ये अल्लाह का वादा था कि अब दोबारा ऐसा तूफान कभी नहीं आएगा। कितना खूबसूरत है ये मंजर। अल्लाह की शान और उसकी रहमत लौट आई है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को नसीहत की कि जमीन पर कभी तकब्बुर मत करना, क्योंकि तुमने देखा है कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। हम यही सबक कभी नहीं भूले। गरूर है तबाही की जद होती है। वो कश्ती जो मौत के दरिया में जिंदगी की निशानी थी, अब सदियों तक जुदी पहाड़ पर एक निशानी बनकर खड़ी रही। यही वो अजीम कश्ती है जिसने इंसानियत को दोबारा जन्म दिया। नूह के 3 बेटे साम, हाम और याफिस इस नई बस्ती के मसीहा बने। इन्हीं से दुनिया की नई नस्लों का आगाज हुआ। हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा ताकि अल्लाह की ज़मीन दोबारा आबाद हो जाए। धीरे धीरे पहाड़ की वादी में एक नया शहर बसने लगा। ये शहर उन लोगों का था जो तूफान से सीख कर आए थे। ये शहर हमारे ईमान की बुनियाद पर खड़ा है। अल्लाह हम सबको ईमान पे कायम रखे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब उम्र के उस हिस्से में थे जहां उन्हें अपनी वसीयत छोड़नी थी। उनका नूर पहले से भी ज्यादा रोशन था। अब हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहना, यही तुम्हारी नजात का रास्ता है। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया कि कैसे जमीन से रिज़्क हासिल करना है। वो सिर्फ एक नबी नहीं, एक उस्ताद भी थे। अल्लाह ने हमारी मेहनत में
बरकत डाल दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लोग अक्सर उस तूफान को याद करके कांप उठते। वो पुरानी दुनिया अब सिर्फ एक खौफनाक सबक बनकर रह गई थी। हमने वो खौफनाक मंजर देखा है, अल्लाह हमें दोबारा उस रास्ते पर ना ले जाए। वक्त गुजरता गया और वो अजीम नबी जिसने 9 सदियों तक हक की दावत दी अब अपनी मंजिल के करीब था। अब्बा जान, हमें इस अंधेरी दुनिया में अकेला मत छोड़िए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें 2 चीजों का हुक्म देता हूँ। पहली, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर 7 आसमां और ज़मीं एक पर्दे में हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पर्दा भारी रहेगा। और दूसरी नसीहत, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिह, क्योंकि यही हर मखलूक की तस्बीह है और इसी से सबको रिस्क मिलता है। फिर वो घड़ी आई जब सदियों का सफर खत्म हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी सांस ली और उनकी रूह अपने रब से जा मिली। उन्हें वहीं दफना दिया गया, उस मिट्टी में जिसे उनके रब ने तूफान के बाद पाक कर दिया था। एक नबी का सफर मुकम्मल हुआ। अब्बा की दावत खत्म नहीं हुई, हम इनके पैगाम को दुनिया के हर कोने तक ले जाइएगी। कुरान कहता है, और बेशक हमने इस कश्ती को एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, तो क्या है कोई सबक सीखने वाला? इतना बड़ा जहाज पहाड़ की छोटी पर ये इंसानी अकल से बाहर है। सदियों तक लोग माउंट अरारात को ढूंढते रहे, मगर कुरान ने साफ लफ्जों में जूदी पहाड़ का नाम लिया जो टर्की के इलाके में मौजूद है। कुरान की एक एक बात सच है, ये वही जगह है जहां कश्ती रुकी थी। मॉडर्न इंजीनियरिंग के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के डायमेंशंस यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तूफान में तैरने के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल डिजाइन था। ये देखो, ये डिजाइन किसी इंसान का नहीं बल्कि उसके रब का सिखाया हुआ है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर दरियाई सीपियां और फॉसिलाइज्ड वुड का मिलना इस बात का सबूत है कि कभी ये बुलंदियां भी पानी में डूबी थीं। दुनिया की हर पुरानी तहजीब, चाहे वो सुमेरियन हो, ग्रीक हो या इंडियन, हर जगह एक अजीम तूफान का जिक्र मिलता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने भी उस अजीम सैलाब की दस्तानें हमें सुनाई हैं। वक्त गुजरता गया, नस्लें आती गईं, मगर जूदी पहाड़ पर खड़ी वो कश्ती आज भी इंसानियत को पुकारती है। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ एक गुजरी हुई दास्तान नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए चेतावनी है जो अपने रब से बगावत करता है। आज भी ईमान वही कश्ती है, जो इसमें सवार हो गया वो बच गया, और जिसने इनकार किया वो गुमराही के सैलाब में डूब गया। 950 साल की मेहनत का एक ही मकसद था कि इंसान अपने खालिक को पहचान ले। आज हमारा वक्त है कि हम उस आवाज को सुने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान खत्म हुई, मगर उनकी सिखाई हुई तौहीद आज भी जिंदा है। इसी तौहीद पर हमारी नजात है। उम्मीद है नूह अलैहिस्सलाम का ये वाकया आपके ईमान को ताज़ा कर गया होगा। शेयर करें इस पैगाम को और सब्सक्राइब करें द कुरान स्टूडियो।